So 1 mole of a CO2 gas at 300 Kelvin is expanded under reversible adiabatic conditions such that its volume becomes 27 times. ठीक है. What is the final temperature? What is work done? बताओ भाई कैसे करेंगे. ठीक है ठीक है ओके. तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है. T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू T2 V2 इज टू पावर गामा माइनस वन. ठीक है. इसमें लिखा हुआ है रिवर्सिबल एडियाबैटिक. तो आपको आइडिया लग रहा होगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या है. राइट. सो यू जस्ट नीड टू सॉल्व. मैं चाहता हूँ सब लोग ये क्वेश्चन करें है ना, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है. सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बता दिया और हिंट भी दे दिया है. सो ट्राई टू सॉल्व. ठीक है. तो करना क्या है मैं बता देता हूँ. इसमें क्वेश्चंस में you have to highlight कि क्या दे रखा है. राइट. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर है ना, ये रिवर्सिबल वाला पार्ट. तो फ्रॉम हियर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन. वी कैन राइट द रिलेशन. राइट. सॉल्यूशन we can write over here T1 B1 to power gamma minus 1 equals to T2 B2 gamma minus 1. So they are saying T1 is 300 Kelvin. So 300. B1, let's say something B over here. And gamma is nothing but this is okay. This is gamma. Okay. Right. G. This is gamma 1.33 and this is CV. Okay. So over here CV. So this is V ki power, V is to power 1.33 minus 1 means 0.33 or you can say 1 by 3 equals to T2. The volume has been becomes 27 times to power 1 by 3. So that is 300 V is to power 1 by 3 is nothing but T2. 27 to power 1 by 3 is nothing but 3 V is to power 1 by 3. And this is going to cut. So T2 is nothing but 100 Kelvin. Once you know what is T2 over here, you can apply always you can apply the formula. Work is nothing but mcv dt, right? Because that is equals to delta E. Okay. So that is what you have to do over here. Now N is 1 mole, CV is 25.08 and that dt क्या होगा, T final minus T initial. So that is 100 minus 300.
So and the unit over here is written as joule, तो ये joule में आ गया. So 25 into 200, 25.08 into 200 joule. So बस your answer. ठीक है. So ये कितना हो गया, इसको अगर 100 से करेंगे तो 2508 का double, and that is minus sign over here. I have written missed this minus sign, so minus. So that is work. ठीक है, correct. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A sample of ideal gas is expanded from 1 meter cube, है ना ये, to 3 meter cube. ये cube ऊपर वाला है, right? In a reversible process for which P is nothing but kV square, है ना? So 1 meter cube to 3 meter cube, and pressure is nothing but P is nothing but kV square, where K is nothing but 6 bar, है ना, by meters to power 6. What is the work done by the gas? तो ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है. Just you have to be careful in this part. Work done जब हम by gas बोल रहे हैं, you have to remember that is nothing but minus P external dB, right? This is formula. But here it is given as reversible process. That means P external और P gas सेम रहेंगे, और आइडियल गैस के लिए ये P gas kb square ऐसे फंक्शन में दे रखा है ना? So for reversible process, ठीक है, P is nothing but P internal, or you can say P gas, and that is nothing but kb square. So work is nothing but integration of kv squared dv minus k will come outside, so minus k b square dv. क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक पावर बढ़ जाएगा, डिवाइड बाई 3. सो दिस इज माइनस के वी क्यू बाई 3. कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3. बस इसको रख दो, माइनस के बाई 3. This is going to be the final is 3 का क्यूब 27, minus 1 का क्यूब 1, so 26. और ये कितना है 6 है, so minus 6 by 3 into 26, so this is minus 52. अब ये हुआ क्या, आंसर क्या आया? बार. ठीक है, यहाँ पे बार, के की वैल्यू क्या थी? बार डिवाइड बाई मीटर पावर 6, और ये बी क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा? बी टेस्ट 9, तो बार मीटर क्यूब हो गया ये, है ना?
और वार मीटर क्यूब को कैसे कन्वर्ट करेंगे जूल में? सो यू हैव टू रिमेंबर 1 बार इज नथिंग बट 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, राइट, ओवर हियर ये आ गया। एंड ये आपका कितना आ गया मीटर क्यूब, so this is 10⁵ न्यूटन मीटर, दैट इज जूल, ठीक है, ये आ गया। एक मिनट, हमने कहीं गलती तो नहीं करी है किसी में? यूनिट में बी क्यूब, ठीक है, तो ये 10⁵ आ गया, तो ये हो गया 52 into 10⁵ जूल, और यू कैन से -5200 किलो जूल, करेक्ट, माइनस साइन आएगा, ओके, माइनस में गलती नहीं करना कहीं पे भी, राइट, माइनस पे एक्सटर्नल डीवी था। 1 बार लीटर कैन बी 100 जूल, ये भी सही बात है, आप 1 बार लीटर वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, है ना, 1 बार लीटर इज नथिंग बट 100 जूल, राइट, और ये मीटर क्यूब आ गया, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, सो यू कैन अप्लाई दैट रिलेशन आल्सो, ठीक है। ये आ गया, अब चलते हैं साइक्लिक वर्क की तरफ। साइक्लिक वर्क के बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स में कराए जाएंगे, हम बस थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, एक मिनट। तो साइक्लिक वर्क में आपको याद रखना है, जैसे अगर ये पीवी दे रखा है, पहले तो ये ध्यान रखना है ये पीवी लिखा है या नहीं लिखा है, राइट, अगर पीटी कर्व दे रखा है, कई बार घुमा देते हैं, पीटी कर्व दे रखा है, देन यू हैव टू ड्रॉ द पीवी कर्व, ठीक है, आपको वो आइडिया लगाना पड़ेगा कि कौन सी आइसोथर्मल लाइन है, कौन सी एडियाबैटिक लाइन है, कैसे करके, राइट, एनीवे, या फिर मेंशन रहेगा, है ना, जैसे पीटी कर्व रहेगा तो ये मेंशन रहेगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये आइसोथर्मल लाइन हो गई, सॉरी ये आइसोथर्मल लाइन हो गई, ये आइसोबारिक लाइन हो गई, और जब ऐसे ये जीरो की तरफ पास होती जाए तो ये आइसोकोरिक लाइन होगी, राइट, पीटी ग्राफ में, ठीक है, इस पूरे ग्राफ में यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट, इस पूरे ग्राफ में यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट, और अगर मान लो ये ऐसे कुछ दे रखा हो, राइट, मान लो पीटी ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मान लो ऐसे दे रखा है साइक्लिक वर्क ए बी सी डी ई, करेक्ट ना, और ये पीटी ग्राफ दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस कैसी है, जैसे ये क्या हो गई आपकी, है ना, आइसोथर्मल, ये क्या हो गई आपकी आइसोबारिक, ये प्रोसेस क्या हो गई आपकी जैसे अब ये अगर ऐसे जा रही है, राइट, सो दिस इज वी आर गोइंग टू से दिस इज आइसोकोरिक, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा के, राइट, समथिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी आइसोकोरिक अंटिल अनलेस कोई फंक्शन ना दे रखा हो, तो ये मान लेंगे, एंड ई टू डी जा रहा है ये, देन इट इज अगेन आइसोबारिक, आइसोथर्मल सॉरी, एंड दिस इज आइसोबारिक, और फिर इनमें वॉल्यूम निकाल लेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, क्योंकि तुम्हें 2 पैरामीटर तो पता है, तो तीसरा पैरामीटर भी पता चल जाएगा, राइट, मैं ये बोल रहा हूँ अगर मान लो पीटी ग्राफ भी दे रखा हो तो आप कैसे निकाल लोगे पीवी ग्राफ, या तो पीवी ग्राफ निकाल लोगे या कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, कोऑर्डिनेट निकाल के फिर आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन लेट्स सॉल्व वॉल्यूम क्या होगा। तो एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, गिव मी 1 मिनट।
एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कॉपी करके, कॉपी नहीं हो रहा है, एक मिनट। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं, अभी मैं साइक्लिक बताने वाला था। मैं लेता हूँ एक बार स्क्रीन शॉट भी लेके कोशिश करता हूँ। चलो ये क्वेश्चन ऐसा है, लेट्स से, ठीक है। You have to try this question. 1 mole of ideal monoatomic gas is put through a reversible path as shown in the figure. तो यहाँ पे ये 1 से 2, 2 से 3 जा रहा है, and then this is isothermal, like it is given, okay. और यहाँ पे शुरुआत में ये तुम्हें दे रखा है 1 atm, 0.5 atm, वॉल्यूम इज गिवन 44.8 लीटर, 22.4 लीटर। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल बिलो। तो ये 1 2 3 में आपको पीवीटी की वैल्यू लिखनी है, तो आपको पी और वी तो पता है, आपको टी भी लिखना है, राइट, ओवर हियर। एंड ठीक है, ये कैसे पी टी निकाल सकते हैं? तो आइसोथर्मल लाइन में आ, 3 पैरामीटर है ना, इसमें ट्राई करके देखते हैं, पुट करो, 2 इक्वेशन बनेगी, टी की वैल्यू मिलेगी कहीं से, ठीक है। 1 मोल दे रखा है, सो ये 22.4 दे रखा है ना, तो आई थिंक ये 273 आएगा कहीं पे, है ना। तो सब कुछ दे रखा है 1 मोल, जस्ट ट्राई टू राइट दिस। फिर क्या करना है, यहाँ पाथ, जस्ट ट्राई टू मेक दिस ग्राफ फर्स्ट। नेम ऑफ द प्रोसेस, तो 1 से 2, तो उसमें Q क्या है, W क्या है, E क्या है और H क्या है, ठीक है। ये डेल्टा E और डेल्टा H है दोनों वैल्यू, 2 से 3 3 से 1। तो ये आपको करना है। फिर अगर आप साइक्लिक की बात करेंगे, है ना, पूरी फुल प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में ये दोनों जीरो हो जाएंगे, राइट। तो लास्ट में प्रोसेस है साइक्लिक। व्हाट विल हैपन इन दिस केस, तो जो ये सब वर्क आएगा उसका एडिशन, टोटल जो एडिशन होगा वही आपका वर्क साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, लेट्स से अगर ये इस पे कर जाता है, तो जैसे अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं, है ना, इस प्रोसेस की, इस प्रोसेस का वर्क क्या होगा, ये ठीक है, आइसोबारिक है।
अब इस प्रोसेस का वर्क क्या होगा, आइसोथर्मल, ये। अब जो हम इनको ऐड करेंगे, राइट, तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सपेंशन हो रहा है, राइट, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, और ये कंप्रेशन हो रहा है, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर, ये पॉजिटिव आएगा। तो एक तरह से सब्ट्रैक्शन हो गया, नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड किया तो सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन से क्या मिला, दिस पार्ट यू आर एबल टू गेट, ठीक है। सो दैट्स वाई अगर हम सारे वर्क को, हर प्रोसेस के थ्रू वर्क को भी अगर ऐड कर लेंगे तो हमें साइक्लिक का वर्क मिल जाता है। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका है अगर ग्राफ सिंपल हो, है ना, अगर ग्राफ सिंपल हो, जैसे मान लो स्क्वायर हो, राइट, या फिर सर्कुलर दिख रहा हो, तो यू जस्ट रिलेटेड टू, यू जस्ट हैव टू सी द डिफरेंस ओवर हियर, कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एंड देन यू कैन राइट। उस पर थोड़ी देर में आते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कर लो सॉल्व करने का, ये जल्दी से देखते हैं, है ना, कितने लोग इसको जल्दी से कर लेते हैं फास्ट। और जो साइन वर्क का आएगा उसका अपोजिट साइन हीट का आ जाएगा। ये कहाँ गया, ओहो, वो भी चला गया, एक मिनट। हाँ, टेबल ड्रॉ करना है, टेबल खुद से बनाना है भाई। ठीक है भाई, हुआ, कितने लोगों से कुछ हो पाया यहाँ से। लेट्स से वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट। तो यहाँ पे 1 ATM दे ही रखा है, वॉल्यूम 22.4 लीटर दे रखा है, सो वी नो PV इक्वल्स टू nRT, है ना। 22.4 कब होता है, STP पे, 273, डायरेक्टली आ गया। फिर सेकेंड वाले पॉइंट पे यहाँ पे भी है, 1 ATM दे रखा है, वॉल्यूम 44.8 लीटर है, वॉल्यूम डबल करेंगे तो टेम्परेचर अपने आप डबल हो जाएगा, 546 केल्विन। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ प्रेशर हाफ हो गया 0.5, वॉल्यूम स्टिल 44.8, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा, 22.4, तो फिर ये आ जाएगा 273 केल्विन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर सबको समझ में आ गया। अब नेम ऑफ द प्रोसेस,
1 to 2 ये क्या हो गया, आइसोबारिक, ठीक है। 2 to 3 आइसोकोरिक, and 3 to 1 isothermal, right? Now we have to write what is Q. तो देख लेते हैं, Q कुछ नहीं होता है, आपका NCDT होता है। क्या होता है, NCDT, राइट, बी केयरफुल, है ना। मैं हीट कैपेसिटी मैंने देखी हुई है इस प्रोसेस में, on in this process C is nothing but because this is isobaric process, so Cp NCP dt, समझ में आई बात। Q जो है वो NCDT होता है ना, NCDT। इसका मतलब क्या हो, और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेस में Q जो है वो डेल्टा H के बराबर होता है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर व्हाटएवर इज डेल्टा H दैट इज Q। तो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, NCP dt हो जाएगी, राइट। सो वी विल राइट NCP dt, N की वैल्यू क्या है 1, Cp क्या होगा, आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, क्या होता है Cp, 5/2R, क्या होता है 5/2R, बस। तो बस यहाँ पे 5/2R। अब देख लो dt की वैल्यू क्या है यहाँ पे, राइट। सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना, सेकंड पॉइंट 1 से 2, तो 1 से 2 टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कितना इंक्रीज हुआ 273। सो वी विल सॉल्व इट, मैं यहाँ पे बस इतना ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आपका वर्क क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट PdV, ठीक है। यानी ये प्रेशर तो कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस प्रोसेस, तो ये dV में देख सकते हैं। तो dV कितना हो जाएगा, P की वैल्यू क्या है 1 atm, एंड dV की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44.8 माइनस 22.4, सो 22.4 लीटर ATM, ठीक है। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू आप, है ना, इज दिस इन दिस प्रोसेस व्हाट इज गोइंग टू बी E वैल्यू NCVDT, ठीक है। फ्रॉम हियर टू हियर क्या होगा, दैट इज NCVDT, फिक्स है। बस आपको ध्यान ही नहीं करना है, इसमें कोई पाथ वाथ ध्यान नहीं रखना है, बस इन दोनों के बीच में DT लगाओ, CV लगाओ। CV की वैल्यू कितनी है 3/2 R, DT की वैल्यू क्या है, फाइनल बढ़ रहा है, सो 273, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5/2 R 270, ठीक है। अब 2 to 3 जाते हैं, 2 to 3 में, राइट, हम यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं, राइट। सो Q क्या हो जाएगा, अब ये कौन सी प्रोसेस है, दिस इज नथिंग बट आइसोकोरिक प्रोसेस। तो Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी उसका C, तो C इसमें क्या होगा, CV हो जाएगा आइसोकोरिक के लिए, तो 3/2 R dt। अब dt में ध्यान रखना है, यहाँ पे कितना था 270, 546 से 273 जा रहा है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, 273 माइनस 546 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस 273, वर्क क्या होगा 0, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। E क्या होगा आपका, है ना, इन दिस प्रोसेस दिस इज CVDT, so again minus 3/2 R 273, H क्या होगा CPDT, तो बस माइनस DT की वैल्यू दिखनी है -5/2 R 273, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में DT 0 होता है, तो DT 0, तो ये दोनों ऐसे डायरेक्टली 0, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी वर्क, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला होगा -nRT ln, है ना, क्या था B2/V1, करेक्ट ना। अब यहाँ पे B2 का मतलब B फाइनल है ना, B फाइनल बाई V इनिशियल, तो वर्क यहाँ से यहाँ, है ना, B इनिशियल कितना था ओवर ईयर 3 to 1 जा रहे हैं हम, 3 to 1 मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, राइट। 44.8 ये क्या है इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम क्या है 22.4, बस डाल दो यहाँ पे 22.4 डिवाइड बाई 44.8, तो ये हो जाएगा 1/2, या इसको ऐसे लॉग में लिख लेते हैं, तो ये जाएगा -2.303, NRT, N की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू
राइट, आर एंड टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टी इज नथिंग बट 273, तो 273 आर, राइट, इनटू, है ना, लॉग ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का की वैल्यू कितनी जाएगी, राइट, तो यहाँ पे माइनस log 2 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.69, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी, राइट, इन दिस प्रोसेस, क्या मैं कह रहा था, हाँ, ये वैल्यू आ गई आपकी, so this is going to be minus, sorry, plus 2.303 r 273 और log 2 की वैल्यू 0.3, तो 6.9 0.3 है ना, तो 0.69 इंटू 273 r, ठीक है, 22.4, ये वर्क आ गया। और आपको ये बात पता है कि E0 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका में नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस 0.69 इंटू 273 इंटू r। अब इन सारी प्रोसेस का अगर हम समेशन कर लेंगे, है ना, इनका समेशन कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क और साइक्लिक प्रोसेस में हीट चेंज मिल जाएगा। तो देखो यहाँ तो, है ना, जितना जितना भी यहाँ पे चेंज आएगा वो जीरो आएगा, दिस इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होंगे, जीरो होंगे। ये कितना आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो, ये 22.4 लिखा है, ये लीटर एटीएम लिखा है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओवर ईयर, ठीक है, इससे फिर आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? पार्ट 2 में Q विल बी माइनस, नहीं, Q NCDT होता है, तो पार्ट 2 क्या है, या फिर ऐसे देख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से, डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, ठीक है, W 0 हो गया, राइट, पाथ मतलब ये वाले पाथ की बात हो रही है अगर, दिस इज, तो ये 0 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, E के बराबर हो गया, तो E के बराबर क्या होगा, NCVDT। सर वो लॉग की वजह से -2.301 आया ना। सर मतलब वो करना ही पड़ेगा हमेशा, उसके बिना नहीं चलेगा, जैसे log v फाइनल बाय v नहीं। ln की वैल्यू पता हो, ln की वैल्यू सबकी नहीं पता होती, ln की वैल्यू बस ln2 पता रहता है, काफी कॉमन है, 0.769 मतलब वही, तो वही तो लिखा है ये एक तरह से, बाकी लॉग में वैल्यूज ज्यादा पता है। ओके सर, ठीक है, समझा, थैंक यू सर। तो देखो ये ऐसे, ये जितने भी साइक्लिक वाले हैं क्वेश्चन, इनको ऐसे ही करना है। हालांकि ये क्वेश्चन में जो हमने ग्राफ दे रखा है वो इजी ग्राफ है, लेकिन पॉइंट जो आपको समझना है वो ये है कि कैसे आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, और इस कोऑर्डिनेट के बाद आपको क्या क्या याद रखना है, राइट। जब भी कभी E और H की वैल्यू पूछी जाए तो आपको NCVDT NCPTT देखना है, राइट, एंड Q और W के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, QSP एक्सटर्नल DV, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइसोथर्मल वाला है, आइसोबारिक वाला है, कौन सा फॉर्मूला है। लॉग की वैल्यू जनरली दे रखी होती है, नहीं तो आप लोग खुद से मतलब समझ सकते हो, ठीक है। सर इन पाथ 1 वी टेक E इक्वल्स टू Q प्लस W, यस, हम वैसे भी ले सकते हैं, E इक्वल्स टू, ये सेम ही आएगा बेटा, ये मैंने यहाँ पे यूनिट अलग लिख दी है ना, लीटर एटीएम, राइट। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक मिनट, पी एक्सटर्नल डीवी यहाँ पे ये है, ठीक है, इसको हाँ ऐसे देखो, P इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं, NRT के हिसाब से लिख सकते हैं, राइट। 22.4 को क्या लिख सकते हैं,
पीवी की वैल्यू जो आई उसको लिख सकते हैं ना एनआरटी के हिसाब से, राइट। तो ये कुछ नहीं लिखा है, एक तरह से 273 आर लिखा हुआ है ना। अगर इसको हटाना चाहो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ जाएगी। तो दिस 273 आर प्लस 3/2 273 आर क्या आ जाएगा 5/2 273 आर। साइन का कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हमने डीवी डीवी पॉजिटिव आएगा, माइनस नहीं लिया है क्या हमने, या माइनस आएगा, एक मिनट, माइनस पी डीवी, डीवी की वैल्यू क्या हो रही थी, एक मिनट, फर्स्ट वाले में फर्स्ट से सेकंड डीवी बढ़ रहा है, हाँ तो ये माइनस आएगा, तो माइनस वैल्यू इधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस था यहाँ पे, हमने मिस किया माइनस। तो ये 273 आर ये लिखा हुआ है, राइट, इसको ऐड कर लो तो उससे आ जाएगा। चलो ये समझ में आया, राइट। सर लॉग बेस 10 नहीं ले सकते हम लोग? लॉग बेस 10 ही लॉग है, तुम हाँ क्यों इतना कंफ्यूज हो, पहले ये बताओ मैंने क्या सर, बोला मेरे था। को वो पॉइंट अभी भी नहीं समझ रहा कि वो नेगेटिव, वो 2 पॉइंट वो क्यों आ रहा है सर, वो 2 पॉइंट वाला। अरे सुनो पहले, जैसे लिखा हुआ है ln2, ठीक है, यस। तो इसको लिख सकते हैं ln2 को log 10 की 10 log 2 बेस 10 हाँ सर। डिवाइड बाई log, राइट, हाँ 10 ये e है ना, यस सर। यही होती है ना, मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ, राइट। यस सर। हाँ ठीक है, अब इसको ऊपर ले आओ, log 10 2 इंटू log e 10, है ना, एक्सचेंज हो हाँ जाते हैं, हाँ सर। करेक्ट। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ये आती है 2.303। अच्छा सर। हाँ ठीक है, तो हाँ इसलिए जब भी कभी ऐसे करते हैं तो 2.303 करते हाँ सर, ठीक है, आप शांति होगी, थैंक यू सर। हैं। चलो तो राइट, हाँ सर मेरे को पूछना था कि एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है कुछ? नहीं नहीं नहीं, दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे, या तो एडियाबैटिक होगा या आइसोथर्मल होगा। सर तो फिर मेरे को डाउट है, जो आपने कल बताया था ना, कंपैरिजन किया था रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक में। हम्म सर उसमें आपने एडियाबैटिक एक्सपांशन में टी फाइनल एंड टी इनिशियल सेम लिया था, और वो एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो वो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल दोनों हो गया ना एक तरह से। नहीं नहीं नहीं, तो फिर कोई उसमें एक सब पॉइंट इनिशियल पॉइंट लेने से डिसाइड थोड़ी ना होता है। ये मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से मान लो दिल्ली से मुंबई गए, राइट, तो ये दिल्ली थोड़ा ना डिसाइड करेगा कि तुम बाय एयर गए कि ट्रेन गए, क्या हमने P1 B1 सेम ले लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा दोनों आइसोथर्मल मतलब होगा। यहाँ से हम है ना कहीं जा रहे हैं फाइनल बी फाइनल पे, आइसोथर्मल ही जा रहे हैं कुछ, है ना, एडियाबैटिकली जा रहे हैं, अलग अलग उससे जा रहे हैं। हाँ ना कुछ तो बोलो। पर सर टी फाइनल एंड टी इनिशियल तो सेम है ना एडियाबैटिक में? आइसोथर्मल में सेम है, यहाँ अलग आ जाएगी, सर मैंने नहीं, बोला आपने जो था। हाँ आपने यहाँ पे क्या होगा कि एक ये बी फाइनल या पी फाइनल कुछ अलग आ जाएगा टी फाइनल के साथ साथ। जैसे तो टी फाइनल भी अलग आएगा ना? हाँ आएगा ना अलग। हाँ सर, तो आपने जो कंपैरिजन किया था उसमें टी फाइनल भी इनिशियल के इक्वल लिया था वो एडियाबैटिक में? आइसोथर्मल के लिए लिया था, ओनली फॉर आइसोथर्मल। सर एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर चेंज एडियाबैटिक होता में है भी ना, टी इनिशियल ही लिए थे। एडियाबैटिक में नहीं लिए थे, वो हम ग्राफ सर वो को कल मैं बता रहा हूँ। कल का पीडीएफ है सर? चलो एक मिनट, कंपैरिजन बिटवीन
कहाँ है भाई, कहाँ है टेम्परेचर सेम? ये आइसोथर्मल वाली लाइन है सर उसमें आपने जो वो बॉक्स में किया है, मीन्स थोड़ा सा ऊपर। अच्छा यहाँ पे, ओ नहीं, यहाँ यस पे सर। केवल टी इनिशियल रहेगा, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा। ओके करेक्ट, यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ तो चेंज आएगा ना। सर तो फिर वो रिजल्ट में यहाँ से भी देख लो ना, ग्राफ से, ग्राफ से देख लो। ग्राफ में क्या है, ये वाली एक आइसोथर्मल लाइन है, इस पे जो भी पॉइंट होंगे, राइट, हम यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, राइट, और यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये टेम्परेचर अलग होगा ही ना। यस सर। हम्म, हाँ सर। हम्म, चलो ओके। तो जो वहां पे जो लिखा था वो, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, टेम्परेचर अलग ही होगा, अलग होना ही है, अगर टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस ही हो जाएगा वो, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब यहाँ समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, राइट। हाँ बोलो अनुष्का। वापस एक बार वो ग्राफ दिखाओ ना एक बार। कौन सा वाला ग्राफ? और वो आपने जो अभी ऊपर बनाया उसमें, ये वाला। तो सर इसमें इनिशियल, अभी इनिशियल और फाइनल पे हम लोग जो अभी सेम टेम्परेचर जो है ना, तो उसमें हम लोग ऐसा भी हो सकता है ना कि दूसरे पाथ से जा रहे हैं उस पोजीशन पे। नहीं तो ये तो मैं, यहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं होगा बेटा, देखो पी इनिशियल बी इनिशियल है, यहाँ से हम जा रहे हैं बी फाइनल पे, है ना, दो प्रोसेस से जा रहे हैं बी फाइनल पे, राइट। अगर ये आइसो और पी एरिया अलग अलग है ना, तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा, यहाँ जो टेम्परेचर होगा अलग अलग होगा ना, क्योंकि ये तो सेम है, तो इन दोनों ये दोनों बैलेंस करेंगे ना। यस। हाँ, तो वो कैसे भी नहीं हो सकता, यहाँ टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो ही नहीं सकता, ओके सर, है ना। थैंक यू। किसी को कोई बात नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क, है ना। एनीवे, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला है वो है इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पार्ट, राइट। फॉर गैसेस सिस्टम, so we have already done or already discussed. Now second part which comes for liquid or solid system. एंड लिक्विड और सॉलिड सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे हो क्या सकता है कि कोई चीज सॉलिड से सॉलिड में ही जा रही हो, है ना। मान लो उसका बस क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो, जैसे ग्रेफाइट टू डायमंड, ऐसा कुछ, राइट, कुछ हो जाए इंटर कन्वर्जन, सो सॉलिड से सॉलिड ही जा रहा है, ठीक है। या फिर लिक्विड से लिक्विड ही रहे, या फिर सॉलिड टू लिक्विड हो जाए, ठीक है। इन दोज केसेस, राइट, ये मान लो कोई भी एक आपका सिस्टम था, इनिशियल सिस्टम सॉलिड था, कुछ आपने टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ किया, राइट, उसके कारण वो सॉलिड ही रहा, या सॉलिड से लिक्विड चला गया, या लिक्विड से लिक्विड ही रहा, राइट। ऐसे केसेस में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है, अगर आपको कहा जाएगा कि एग्जैक्ट निकालो तो हम निकाल देंगे, राइट, बट अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं कि वो जीरो ही है, एंड वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, डेल्टा एच
अच्छा, hence delta H, right, this is एक तरह से हो गया phase transition reaction, this is phase transition reaction, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है, राइट, कुछ सॉलिड से सॉलिड ही रहा है या फिर सॉलिड से लिक्विड चला गया, दीज टू आर फेज ट्रांजिशन, लिक्विड से लिक्विड हुआ, ये फेज ट्रांजिशन नहीं है, तो इसको अलग से लिख लें। फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो गया है, जो मॉलिक्यूल्स का आपस में एक दूसरे के साथ जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है, राइट, सो दिस इज आल्सो फेज ट्रांजिशन। You can write example, let's say graphite to diamond. Here we can write example, let's say ice to water, no? Kind of. हाँ, obviously liquid to solid भी हम लिख सकते हैं, right? Obviously solid to liquid, then liquid to solid. ठीक है, ये सब आ गए। इस in all those cases, what is delta H? Delta H is nothing but M into L. क्या होता है? Delta H is nothing but phase transition. In phase transition, है ना, phase transition है ना occurs at constant pressure and temperature. So यहाँ पे delta H is not NCPDT, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, this formula is not valid, वो ऊपर था, ठीक है, this is not going to be valid, right, and delta, let's say U is not going, or delta E is not going to be NCPDT, ये नहीं sorry NCPDT, ये फॉर्मूले नहीं आएंगे, राइट। यहाँ क्या होगा, इन दोज केसेस हम लिखेंगे डेल्टा H इज नथिंग बट M into L, where L is latent heat of vaporization, sorry, latent heat of phase transition, जो भी चेंज हो रहा हो, है ना, so ये डेल्टा H आ जाएगा। What is the formula? Delta H is nothing but delta E plus delta PV, right? तो कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम में चेंज अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है, सो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स change in temperature, sorry, change in volume is assumed to be zero, है ना, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, अगर निकालना चाहेंगे तो निकाल लेंगे डेल्टा बी के हिसाब से, राइट, लेकिन ये अगर दे रखा हो, डेंसिटी दे रखी हो, मान लो आपको, है ना, मान लो आपको ग्रेफाइट की डेंसिटी दे रखी हो, डायमंड की डेंसिटी दे रखी हो, देन यू कैन कैलकुलेट कि भाई कितना वॉल्यूम होगा, डेंसिटी पता है, यू कैन कैलकुलेट, बट अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ अज्यूम टू बी जीरो लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गई वैल्यू, हेंस delta H is approximately equals to delta E, ठीक है, ये बात ये लिख लो। If pressure and volumes are given,
आर गिवन, तो फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप निकाल लोगे डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी and that could be delta E plus P2 V2 minus P1 V1, अगर प्रेशर कांस्टेंट ही है टाइम पे तो P V2 minus V1 ऐसे निकाल लेना, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि कौन क्या दे रखा है आपको। अगर मान लो वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो आप समझ जाओगे कि अच्छा हाँ m इज मास, बेटा m मास, यहाँ पे m क्या है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, m into l। हाँ ना, नहीं पढ़ा ये? अरे यार ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, जब वो हीट स्टीम के बारे में बताते तब 9th में था। ओके कोई बात नहीं। L इज लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांजिशन। अब यहाँ पे अगर मान लो फेज चेंज में अगर आपकी मेल्टिंग हो रही हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या फ्यूजन बोल सकते हैं, फ्यूजन हो रहा हो, है ना। या फिर अगर मान लो सब्लिमेशन हो रहा हो तो m इंटू एल, एल क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। वेपराइजेशन हो रहा हो तो m इंटू एल, है ना, वेपराइजेशन। तो ऐसे निकाल लेंगे। तो आपको ना, आपको फॉर्मूले के साथ साथ थोड़ा समझना भी है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमें वॉल्यूम अगर नहीं दे रखा है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको जीरो ही ले लेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अप्रोक्सीमेटली जीरो, है ना, यहाँ पे ये लिखा है assume to be जीरो, और ये दोनों वैल्यू आपस में फिर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कहीं पे प्रेशर वॉल्यूम वगैरह वगैरह दे रखा है, तो फिर आप यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डाल के सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब बात आती है इसमें एक और, जैसे अभी मैंने डेंसिटी की बात की, ठीक है। तो अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, तो आप वॉल्यूम इनडायरेक्टली निकालोगे, ठीक है, डेंसिटी से, ठीक है। मास दे रखा है, मान लो लिखा हुआ है 50 ग्राम, कुछ सैंपल है CaCO3 है, राइट, उसकी डेंसिटी पहले इतनी थी, अब हीट करने के बाद इतनी हो गई, राइट। व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा एच, देन यू हैव टू कंसिडर। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, कि कोई है जिसको नहीं समझ में आ रही हो? चलो अब समझते हैं। ये तो हो गई जब सॉलिड और लिक्विड हो। जब गैस आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो गैस आ जाएगा तो गैस का तो वॉल्यूम भाई चेंज दिखेगा, लिक्विड से गैस का वॉल्यूम काफी है, राइट। तो ऐसे केसेस में अगेन लिक्विड का वॉल्यूम जीरो ही मान लेते हैं लगभग गैस के कंपैरिजन में, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम जीरो था, वहां पे तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो नहीं होगा। जैसे कोई लिक्विड है वो गैस में जा रहा है, तो हमने देखा भी था 1 मोल वाटर 18 ml था, और वो अगर जाएगा तो वो 31 लीटर हो जाएगा, राइट। तो 31 लीटर के कंपैरिजन में 18 ml को तो जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी बात लिख लेते हैं, है ना, नोट फॉर सॉलिड टू गैस या फिर लिक्विड टू गैस, गैस दे रखा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, दिस इज ऑल्सो फेज ट्रांजिशन, राइट। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, है ना, जैसे मान लो एग्जांपल हम लिख सकते हैं H2O लिक्विड टू H2O गैस, है ना, या फिर यहाँ पे NH4Cl सॉलिड टू NH4Cl गैस, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, राइट, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो देखो इसका वॉल्यूम तो हम एक तरह से
यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिखना है, तो इसका तो वॉल्यूम लगभग हम, और ये फेज ट्रांजिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो इसका वॉल्यूम तो नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर व्हाट विल हैपन, डेल्टा पीवी विच इज नथिंग बट P delta V, because constant pressure पे हो रही है रिएक्शन, which is nothing but, है ना, NGRT. G is the moles of gas. समझ में आया ये बात? P delta V क्या हो जाएगा, डेल्टा V is nothing but, इसको एक बार और लिख लेते हैं, डेल्टा V is nothing but PV gas, which is nothing but NGRT. Ng is moles of gas and Vg is volume of gas. फिर से समझ लेते हैं, ये जो P डेल्टा V है, इसके बीच में एक और आप ऐसे लिख सकते हो, P Vg माइनस PL, है ना, या फिर BS, जो भी है, दिस पार्ट वी हैव टेकन 0, सो दैट्स हाउ वी गॉट PVG, और PV इक्वल्स टू क्या होता है, NRT, सो दैट्स व्हाई NGRT. मान लो मैं बोलूं कि 2 मोल वाटर को मैंने हीट किया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, NGRT, किस टेम्परेचर पे हीट किया उसके हिसाब से P डेल्टा V मुझे डायरेक्टली निकल जाएगा. I don't have to worry about what is delta V. सुना है? प्रेशर बेटा फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर कहाँ होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, बाय डिफॉल्ट है ये. जनरली हम कहते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में होती है, राइट? वाई इज सॉलिड वॉल्यूम नेग्लेजिबल? अब देख लो, सॉलिड का वॉल्यूम तो नेग्लेजिबल होगा ही ना. 31 लीटर हमने बताया था, 1 मोल वाटर का मतलब क्या है, 18 ml. ठीक है, 1 मोल मतलब 18 ग्राम, तो 18 ml है ना. और 1 मोल स्टीम का मतलब क्या होगा, अगर 373 पे आएंगे तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 31 लीटर. तो 18 ml और 31 लीटर में 18 ml को खत्म ही, मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो, दैट्स व्हाई. एनजी का मतलब कुछ नहीं है, एनजी का मतलब इतना है कि मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस हैज बीन प्रोड्यूस्ड या वेपर्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड, बस. तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू एम इंटू एल है ना यहाँ पे. हेंस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस NGRT. है ना, where डेल्टा एच इज M इंटू एल. ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है. M किसका लेंगे, जिस फेज ट्रांजिशन में क्या होगा, अगर मान लो मैं बोलूं कि 36 ग्राम वाटर मैंने हीट करके स्टीम बना दिया, तो बताओ वाटर का मास चेंज हो जाएगा क्या स्टीम बनने के बाद, नहीं ना, तो वही रहेगा M 36 ग्राम जो क्वेश्चन में दे रखा है. G is in subscript, right? G is just to represent these are the moles of gas. ठीक है,
अब समझते हैं, ये तो फेज चेंज में ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक और है इन केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो अगर कहीं पे लिखा है जैसे A सॉलिड प्लस B लिक्विड फॉर्म्स लेट्स से C गैस D सॉलिड, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से एंड ऑल दोस केमिकल रिएक्शन हैपेंस एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। जनरली occurs at constant temperature and pressure, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में हो रही है, जनरली ओपन एटमॉस्फेयर में होती है, इसलिए यहाँ पे अगेन वही कांस्टेंट प्रेशर वाली बात बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन। नाउ ए जैसे ये लिखा है A सॉलिड B लिक्विड इज गोइंग टू फॉर्म C गैस D सॉलिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P डेल्टा V इज नथिंग बट व्हाट विल हैपन, P वॉल्यूम, you know, summation of volume of reactant product, sorry, final क्या है product minus summation of volume reactant, ये सॉलिड और लिक्विड है, तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, सिंस लेट्स से यहाँ पे एक और E गैस और लिख देते हैं, ठीक है, सिंस वॉल्यूम ऑफ solid and liquid can be neglected in comparison to gas, hence P delta V is nothing but, है ना, और मान लो यहाँ पे एक गैस, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं, हमने यहाँ पे गैस नहीं लिखा है, राइट, तो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ D, यहाँ पे C गैस लिख लेते हैं, D गैस E सॉलिड F गैस, ठीक है, सो P डेल्टा V इज नथिंग बट, अब हमारे लिए ये तो हमारे कंपटीशन से ही बाहर हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P है ना, समेशन ऑफ वॉल्यूम गैस प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ वॉल्यूम रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सॉरी गैस रिएक्टेंट, ठीक है भाई, जितने भी गैसेस चीजें बस उन्हीं के वॉल्यूम में चेंज देखेंगे क्या होगा। अब सारी की सारी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो सब गैस जो होंगी वो क्या होंगी, वो अपने मोल्स के हिसाब से वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, राइट। इट डजंट मैटर कि कौन सी गैस है, हीलियम है, आर्गन है, या फिर अमोनिया है, सब गैसेस के लिए आइडियल गैस में आपने पढ़ा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे सारी गैसेस का जो एक मोल का वॉल्यूम होगा वो सेम ही होगा, राइट। सो वी डोंट हैव टू वरीड अबाउट, वी कैन ओनली राइट, यहाँ पे इसको एक तरह से लिख सकते हैं P डेल्टा V गैस, एंड P डेल्टा V गैस इज नथिंग बट, यहाँ पे दोनों तरफ हमारे गैसेस मोल्स हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, तो वी विल नॉट राइट NGRT, वी विल राइट डेल्टा NGRT, व्हाट वी विल राइट, डेल्टा NGRT, मतलब मान लो एक मोल यहाँ पे खत्म हुआ और 3 मोल यहाँ बने, तो हम करेंगे 1 यहाँ से और 3 बने, तो 3 - 1 2 मोल्स का नेट एडिशन हुआ, राइट। ठीक है, प्रियंका आते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है, आपकी बात, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस P delta Vg is nothing but delta NGRT, which is nothing but moles of product minus moles of summation of, summation समझ रहे हो, सबका हमने सम ले लिया, minus moles of reactant
RT। अब क्वेश्चन है कि किसी ने बोला कि हम उसको जीरो नहीं लेंगे, तो जीरो नहीं लेंगे तो फिर माइन्यूट कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, राइट। और फिर उसको नेग्लेक्ट तो करना ही है भाई। कहीं पे लिखा हुआ है 1000 और इसके साथ लिखा हुआ है 1, अब 1.013 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये निग्लेक्ट करोगे ही, चाहे कैलकुलेट कर लो, है ना। मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सो हम क्या इसके हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। देखा जाए तो 0.022 इंटू 10⁻23 ये तो सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 6 के कंपैरिजन में, इसको तो नेग्लेक्ट कर देते हैं ना इसके कंपैरिजन में। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेट दिया होगा तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। बस जो बात समझानी थी वो यही थी कि डेल्टा एनजीआरटी लिखना है। एनजीआरटी का मतलब होता है सारी गैसेस का आपने वॉल्यूम ऐड कर, मतलब मोल्स ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि डेल्टा एनजीआरटी मतलब कितने मोल्स ऑफ गैस खत्म हुए और इसके कंपैरिजन में कितने प्रोड्यूस हुए, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेंस डेल्टा एच इज नथिंग बट डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन केमिस्ट्री। ये वाला फॉर्मूला जो अभी तक पढ़ाया हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, उससे फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस पार्ट पे केमिस्ट्री में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन बोलता हूँ और इससे आपको आइडिया लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल, द एंथैल्पी चेंज for the reaction of 50 ml of ethylene with 50 ml of H2 at 1.5 atm pressure is, है ना, minus 0.31 किलोजूल। सो एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच, है ना। व्हाट इज द डेल्टा ई, हमें ये निकालना है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, पहला काम हमारा क्या है कि हम रिएक्शन लिखें, राइट। इथाइलिन की रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है, कौन सी रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। व्हाट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, है ना। इथेन विल बी फॉर्म्ड, करेक्ट। तो क्या होगा, इथाइलिन का मतलब है C2H4 गैस, H2 गैस फॉर्मिंग C2H6 गैस, ठीक है। अब फॉर्चुनेटली इन्होंने हमें डेल्टा एनजी की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म्स में दे रखा है, राइट। एनीवे क्या दे रखा है यहाँ पे, T इक्वल्स टू 0 पे, मतलब इनिशियली 50 ml इथाइलिन थे। ये रिएक्शन बैलेंस है, इसके एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करके इसका एक मोल बनाएगा। 50 ml यहाँ 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, कितना बनेगा 50 ml, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे आप देख सकते हो, initially how much volume is there, 100 ml. Finally how much volume is there, 50 ml. So what is going to be delta H is nothing but delta E plus P delta V. So minus 0.31 kilojoule is equals to delta E plus P. P की वैल्यू 1.5,
ATM, V की वैल्यू 50 ml, प्रोडक्ट क्या है ना, V प्रोडक्ट माइनस V रिएक्टेंट. So we are going to write minus 0.31 kilojoule delta E plus 1.5 ATM. V product is 50 ml. V reactant is 100 ml. तो ml को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं. So this is minus 0.31 kilojoule is nothing but delta E. किलोजूल को हम यहाँ जूल लिख लेते हैं, है ना. तो अगर किलोजूल को जूल लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 310 जूल माइनस is delta E plus 1.5 ATM into minus 50 into 10 to power minus 3 लीटर. ATM लीटर होता है लगभग 100 जूल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 101.3 होता है, तो हम 100 ही ले ले रहे हैं अभी. सो दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा, तो ये 5 ही आ जाएगा. सो दिस इज 7.5. तो डेल्टा E is nothing but minus 310 plus 7.5, approximately minus 302.5 joule. अच्छा, समझ में आया क्या किया. क्वेश्चन में क्या करना है, यही इसी तरह के क्वेश्चन हमको पूछ जाएंगे. हाँ भाई, तो ये इस तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, ये माइनस है ना. आप देखो ना मैंने क्या लिखा है, डेल्टा ई अंश समझ में आया ना. अरे भाई ये माइनस था, राइट, ये इधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा ना. सर वहाँ 7.5 होगा, पॉजिटिव का ही होगा ना वहाँ. हाँ तो पॉजिटिव का है ना, तो वहाँ मतलब राइट हैंड साइड में पॉजिटिव का होगा ना. अरे यहाँ माइनस था ना, तो ये माइनस ही रहेगा ना. तो ये इधर 10 में से -1 बचेगा ना. 10 में से, अरे 10 to -1 बचेगा, वो तो पावर है ना. हाँ तो 1/10 हो गया वो तो. ओके सर, समझे. हाँ हाँ. हाँ चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं. हाँ, लीटर एटीएम टू जूल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट लिख दिया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया ये, ठीक है. आप क्या करो, आप यहाँ लीटर एटीएम पहले लिख के उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट द आंसर. मैंने डायरेक्ट लिखा है. अच्छा, इसमें एक बस ऐसे ही मैं बताने के लिए बोल दे रहा हूँ, राइट. आपको ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है कि गैसेस शुड बी कन्वर्ट एज रियल, तो फिर ये नहीं लिख सकते हैं डेल्टा NGRT, राइट. फिर P डेल्टा VG के हिसाब से लगाना पड़ेगा. तो वो क्वेश्चन थोड़े और डिफिकल्ट टाइप के हो जाएंगे, राइट. उनमें आपको डेल्टा NGRT से आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना सकते, आपको P डेल्टा VG लिखना पड़ेगा. समझ में आया क्या बोला. अगर कहीं ये मेंशन हो कि हम रियल ही लिख रहे हैं गैस को,
आइडियल नहीं मान रहे, मतलब मेंशन हो, अगर मेंशन नहीं है तो रियल आइडियल ही मानना है। अगर ये मेंशन हो कि हमने रियल मान रखा है और फिर जब मेंशन होगा तो फिर आपको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखन देना है आंसर, मोल्स के टर्म्स में नहीं। तो एनीवे ये हम पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने, हमें पता है कब हमें लिखना है पी डेल्टा वी इक्वल्स टू या पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, राइट। तो चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है फॉर ए रिएक्शन टू C6H6 liquid plus 15 O2 gas gives 12 CO2 gas plus 6 H2O liquid at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, what is the difference between heat of reaction at constant pressure and constant volume is? ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? हीट एट कांस्टेंट, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा ई। तो डेल्टा ई और डेल्टा एच के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अब आपको पता ही चल गया है क्या करना है, जस्ट ट्राई टू राइट एंड बताओ आंसर इसका। करेक्ट अभिनव। तो कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है, लिक्विड हटा दो, जस्ट सी गैस, है ना। तो यहाँ पे ये कितना है 12, यहाँ पे ये कितना है 15। एक बार फिर भी देख लो ये बैलेंस है या नहीं है, 6 12 12 है, जस्ट टू क्रॉस चेक। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी कितना है 12, इधर कितना है 15, तो ये हो जाएगा -3। और टी की वैल्यू कितनी है 298। तो बस डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इज नथिंग बट -3। आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? आर की वैल्यू जनरली इन सारे क्वेश्चंस में 25/3 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 8.314 जूल में, और इसको ले लो 300 अप्रोक्सीमेटली, तो इसको कट कर देंगे तो 100, तो आ जाएगा -3 इंटू 2500। और शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसको 2.5 किलो जूल। सो दिस इज -3, ये तो जूल आया, इसको लिख सकते हैं 2.5 किलो जूल। तो ये याद रखना, R इंटू 298 ऐसा कभी रहेगा तो आप डायरेक्टली 2.5 किलो जूल लिख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 7.5 किलो जूल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट लिखोगे तो थोड़ा सा इससे थोड़ी कम आएगी। ठीक है, समझ में क्या करना था इसमें? चलो अब क्वेश्चंस और एक मिनट लिख लो इसको। किलो जूल में हमने लिखा है, अगर आप निकालना चाहो कैलोरी में तो कैलोरी में लिख लो, यहाँ 2 लिख दो बस आंसर।
2 के हिसाब से। करेक्ट है नुस्खा? डिफरेंस बोला है तो पॉजिटिव आएगा। डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे साइन आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, राइट? ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है डिफरेंस बिटवीन, पहले यहाँ पे लिखा है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट डजंट मीन कि दिस इज डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई, सीक्वेंस से लिख रखा है। सुशील, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई लिखो ना। अगर आपको साइन नहीं मिल रहा है तो आप आंसर लगाओगे, साइन के साथ दे रखा है तो फिर ध्यान रखो क्या आप पूछ रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ आइस, है ना, यहाँ पे लिखा है 1 मोल आइस, ठीक है, दैट इज गोइंग टू 1 मोल water vapor, that means nothing but H2O solid से H2O गैस, कहाँ पे किस पे जा रहा है, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4.6 mm Hg प्रेशर। ठीक है, फाइंड delta H and delta E if latent heat of fusion of ice is 80 calorie per gram and latent heat of vaporization of water is 596 calorie per gram। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 1 मोल आइस से 1 मोल वाटर गए, कहाँ किस टेम्परेचर और प्रेशर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4.6 mm Hg प्रेशर। डेल्टा एच और डेल्टा ई बताना है हमें। इफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 596 कैलोरी पर ग्राम। सॉल्व क्या करना है फिर से समझ लेते हैं। आपको 2 फेज चेंज हो रहे हैं, राइट? मतलब इसमें मतलब यहां से पहले H2O लिक्विड, लिक्विड से गैस, राइट? अब ऐसे केसेस में क्या होगा, आप ऐड कर लोगे, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच क्या है आपकी, यू कैन से जो हीट है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है ना, एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं उसमें। तो मतलब आप एक ही प्रोसेस, एक ही रास्ते पे, जैसे हमने पढ़ा बताया भी था, है ना, सॉल्युबिलिटी वाले टाइम पे बताया था, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, है ना,
इन दोनों में जो चेंज आएगा वो ऐड हो जाएगा। तो इसका टोटल H क्या निकलेगा, इसका M इंटू एल, इसका M इंटू एल। ठीक है, ये दोनों में डेल्टा H पता चल गया। डेल्टा E क्या होगा, M डेल्टा NGRT लिखना पड़ेगा आपको, राइट। ठीक है, तो बस आपको पता चल गया डेल्टा H, देन यू कैन कैलकुलेट डेल्टा E। मैंने हिंट दे रखा है, लोगों को बिना हिंट के ये बात समझ में आ रही है वो जल्दी से करें, राइट। सॉल्व। ये याद रखना है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है कैलोरी पर ग्राम, क्या लिखा है, पर ग्राम, इसीलिए M इंटू एल, राइट। M को ध्यान रखना है, 1 मोल, है ना, केवल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं जोड़ देना है। ओके, सुशील का पहला आंसर यही, पता नहीं क्या है ये आंसर, अपनी डेल्टा H दे रखा है, करेक्ट है अगर डेल्टा H है सुशील तो। गलत अभिनव, फिर से वही बात बोल रहा हूं मैं, कैलोरी पर ग्राम है, 1 मोल आइस दे रखी है, इनटू 18 करना है इनको। 1 मोल का मतलब कितना हुआ, 18 ग्राम ना। करेक्ट खुशी। करेक्ट, करेक्ट खुशी। तो ठीक है, अब क्या करना है, लेट्स से मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन, राइट। सो यहाँ पे डेल्टा H टोटल क्या हो जाएगा, दैट इज M इंटू एल, दैट इज फ्यूजन, प्लस M इंटू एल वेपराइजेशन, V फॉर वेपराइजेशन। सो M को कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 80 प्लस 596, सो दिस इज गोइंग टू बी 80 इंटू 676। क्या जाएगा, 12168, दैट इज कैलोरी। ठीक है, ये आ गया डेल्टा H। व्हाट इज गोइंग टू बी डेल्टा E? डेल्टा H is nothing but delta E plus delta NGRT, yeah, NGRT, right? So this is 12168, this we don't know. Ng कितना है, how many moles of gas produce 1, R की वैल्यू कितनी है 2 कैलोरी, T की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस 273, तो 546 को सब्ट्रैक्ट कर दो डेल्टा E से। सो 12168 माइनस 546, तो ये कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 546 का मतलब कितना हुआ, ये 12168,
तो 2 16 से ये गया, सॉरी 6 से ये गया 2, और ये कितना जाएगा 11 से यहाँ पे 6 11622। ठीक है, इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे सबके करेक्ट। अनुष्का आपका, आपने फिर से सुना नहीं ना, मैंने आपको बोला था कि कैलोरी पर ग्राम है, आप ही के लिए बोला था, आपने फिर से वही आंसर डाल दिया। डेल्टा एच ग्राम है पर ग्राम, 18 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ही क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करना है, राइट। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अब आप लोग होमवर्क पूरा कर सकते हो जो हमने आपको पहले दिया था, राइट। फाउंडेशन बिल्डर में आप स्टार्ट कर दो पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले जितने भी क्वेश्चन है, डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा यू, इन सब की जितनी भी कैलकुलेशन है ये सब आपको करनी है। ठीक है, डेल्टा ई अगेन भाई ये एनजीआरटी आएगा ना, क्योंकि सॉलिड से गैस में जा रहा है, वेपर। हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल। आर की वैल्यू कितनी है 2 कैलोरी, क्योंकि कैलोरी में आंसर दे रखा है। टी की वैल्यू कितनी है, किस टेम्परेचर पे हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, 273। बस ठीक है, तो ये पूरा पार्ट आपका यहाँ पे अभी फिनिश हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे और थर्मोकेमिस्ट्री के बाद फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो एक पार्ट 1/3 खत्म हो गया चैप्टर। हाँ बोलो जास्करन। हेलो, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है ना? सर मेरे को ये डाउट था कि सर मास वहां पे डायरेक्टली 18 लिख लिया, सर हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा पहले वॉल्यूम निकाल के, फिर पीएम इस डीआरटी निकाल के, फिर डेंसिटी से मास बाय वॉल्यूम करके? नहीं पता है ना 1 मोल। सर बट प्रेशर के उसकी वजह से वेरिएशन नहीं आएगा? नहीं, अच्छा, मास के लिए हमें क्या क्या दिक्कत है, डेंसिटी तो फिक्स थोड़ी ना होती है, डेंसिटी भी तो चेंज होती रहती है। डेंसिटी तो कांस्टेंट लिक्विड की मान लेते हैं, आइस की डेंसिटी अलग होगी, वेपर की अलग होगी, यस सर, पानी की डेंसिटी है ना। यस सर, ओके, थैंक यू सर। जस्ट पहले वाला एग्जांपल मुझे नहीं समझ में आया, आप एक और बार बता सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्या था इसमें। इसमें देखो डेल्टा एनजी लिखना था भाई, 15, ये लिक्विड भूल जाओ सब, है ना। 15 मोल ऑक्सीजन खत्म हुए तो 12 मोल CO2 बने, यही तो लिखा है इसमें। यस सर। तो बस इनमें का डिफरेंस कितना हुआ, -3। डेल्टा एनजी कितना हुआ, 12 - 15 है ना, 12 - 15 -3। हाँ ना। मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे मैं कह रहा हूँ 15 मोल ऑक्सीजन खत्म हुई है ना, और 12 मोल CO2 बन गई। यस सर। हाँ या ना। हाँ। तो कितने मोल्स का डिफरेंस आया, -3। डेल्टा एनजी तो यही होता है ना। एनजी का मतलब गैसेस डिफरेंस, और डेल्टा मतलब डिफरेंस, एन मतलब मोल्स ऑफ गैस, राइट। यस सर, समझा। हाँ, तो 12 - 15 ये किया, इसको नहीं लेना, ये लिक्विड है, इसको नहीं लेना, ये लिक्विड है, राइट। वी यस हैव सर। ऑलरेडी इग्नोर्ड दैट, दैट्स इट। -3 आया, आप सॉल्व कर लो। ओके सर, समझा। चलो ओके, दैट्स इट। तो यहीं पे खत्म कर रहे हैं इसको, जिसको डाउट है वो पूछ लें अपने। सर मुझे सिर्फ एक बार आप फर्स्ट पेज दिखा दो ना सर, प्लीज।
सर 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलो उसके बाद वाला हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ सर, मैंने आपको व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजे थे। 1 मिनट। यस सर। To an evacuated vessel with movable piston under the external pressure of 1 atm, 0.1 mole of helium, and 1 mole of unknown compound, vapor pressure 0.68 atm at 0 degrees Celsius are introduced. Considering the ideal behavior, the total volume of gas at 0 degrees Celsius is close to. So the evacuated vessel piston under external pressure of 1 atm. ठीक है, तो हो गया ये। चले आगे यहाँ पे। हाँ, क्लास इज ओवर, नाउ आई एम टेकिंग डाउट्स। डन, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं कि एक देखो ये मूवेबल पिस्टन है, इसका मतलब क्या है, दैट कैन मूव, राइट। और इसमें ये है द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, राइट। 0.1 मोल ऑफ हीलियम है एंड 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड है। अननोन कंपाउंड वेपर्स हैं आई थिंक, राइट। वेपर प्रेशर इज गिवन एट 0.6 atm, ठीक है। So the pressure due to this helium gas is going to be 0.32 atm, ठीक है। Considering the ideal gas behavior, total volume of gases is, तो इसके हिसाब से आप बस वॉल्यूम निकाल लो, 0.32 into V equals to an RT, T की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस, सो 22.4, तो V की वैल्यू आ जाएगी 22.4 डिवाइड बाई 0.32, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स से थोड़ी सी ज्यादा। कितना आंसर दे रखा है? 1 मिनट सर। 68 समथिंग आएगा। हाँ, नहीं सर, आंसर 7 दिया है आपकी।
सर आंसर 7। 7 तो ये थर्ड, ये इसका 1/3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होने की जगह 1/3 आ रहा है। सॉरी 0.1 मोल है इसलिए, ठीक है। यस सर, तो 6.8। हाँ वो 0.1 था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड डाउट है तुम्हारा। हाँ सर। Spherical volume of 21 centimeter diameter is to be filled with hydrogen at NTP from a cylinder containing gas at 20 atmosphere pressure. If the cylinder can hold 2.82 liter of water, calculate the number of balloon that can be filled. तो इसमें क्या है, इसमें तुम्हें कैपेसिटी दे रखी है, कैन होल्ड 2.82 लीटर, इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2.82 लीटर। तो सर मुझे लगा कि वो वाटर के अलावा गैस भी ऊपर रहेगा। तो एक मिनट पूरा पढ़ लेता हूँ फिर से। A spherical balloon of 21 centimeter diameter, right, is to be filled with hydrogen, ठीक है, at NTP from a cylinder containing a gas at 20, एक सिलेंडर है, इससे हम ये भर रहे हैं, राइट, at 20 atm प्रेशर, इसमें 20 atm प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, भर रहे हैं। If the cylinder can hold 2.82 लीटर ऑफ वाटर, सिलेंडर के बारे में बोला है ना, तो यही होगा ना, इसके अलावा फिर क्या हो सकता है बताओ। सर मुझे लगा, सर मैंने कुछ और ही सोच लिया सर, मुझे लगा कि वाटर रहेगा तो उसके अलावा तो ऊपर गैस रहेगा सर, मैं तो सोच लिया। ठीक है, वो भी सही था, लेकिन फिर वॉल्यूम दे रखा होता ना उन्होंने। हाँ सर। अगर मान लो ऐसा लिखा होता कि मान लो 14 लीटर सिलेंडर है लेकिन उसमें 2.82 लीटर वाटर है, तब तुम सोचते हैं कि अच्छा रिमेनिंग इज गोइंग टू बी गैस, बट यहाँ तो कुछ दे नहीं रखा है। दैट मींस इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, मतलब है ना, सिलेंडर। अब तो आ जाएगा। यस सर, अब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? At room temperature, the following reaction proceed nearly to completion. NO plus O2 forms 2NO2 and 2O4. The dimer N2O4 solidify at 262 Kelvin. 250 ml flask and 100 ml flask are separated by stopcock at 300 Kelvin. And the nitric oxide in larger exert a pressure of 1.053 atm and the smaller one contains, तुमने पूरा नहीं भेजा है क्या? उसके आगे तो कुछ नहीं है, कंटेन्स तक आ रहा है मुझे, पूरा नहीं है ये। या ये दो एक साथ भेजे हैं, ये कंबाइंड है क्या? ये हाँ सर, वो कंबाइंड है दोनों। अच्छा ओके, एक मिनट दो ड्रॉ कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कंप्लीशन पे चली जाती है ना, दिस इज अप्रोक्सीमेटली फॉर्म दिस, और ये रूम टेम्परेचर पे N2O4 बन जाता है, ठीक है। तो ये बन गया, दिस इज, एंड दिस इज गोइंग टू बी राइट सॉलिडिफाई एट 262 केल्विन, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी सॉलिडिफाई। तो ठीक है, इसका मतलब है 262 के ऊपर ये लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे दिस इज गोइंग टू बी लिक्विड। एनीवे, a 250 ml flask and 100 ml flask separated by stopcock at 300 Kelvin. तो एक 250 ml का फ्लास्क है, एक 100 ml का फ्लास्क है, इनके बीच में एक stopcock लगा हुआ है। These are separated by a stopcock at 300 Kelvin. ठीक है,
the nitric acid is the larger flask exert a pressure of 1.053 atm. तो यहाँ पे आपको प्रेशर भी पता है 1.053 atm. So I think टेम्परेचर पता है तो मोल्स निकाल लोगे आप, ठीक है. PVT सब पता है, राइट. सो यू कैन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ NO, क्योंकि उन्होंने बोला है नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें भरी हुई, ठीक है. And the smaller one contains oxygen at 0.789. तो यहाँ पे प्रेशर दे रखा है 0.789 atm, जिसका मतलब NO2 निकाल लोगे आप, ठीक है. ओके. The gases are mixed by opening the stopcock and after the end of the reaction the flasks are cooled to 220 Kelvin, ठीक है. तो इससे आपको एक मोल्स मिले, मान लो ये X मिले और ये Y मिले, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कुछ होगा. तो आई थिंक इनमें से ये थोड़ा सा बच जाएगा. जस्ट लुकिंग एट द एग्जैक्टली नहीं पता, ये थोड़ा बच जाएगा और थोड़ा ये बन जाएगा, राइट. तो जब आफ्टर दिस रिएक्शन विल कंप्लीट, ये जो आपका 350 ml का हो गया है ना, इसमें N2O4 होगा और O2 होगा. जब ये 220 केल्विन पे ले जाएंगे तो ये सॉलिडिफाई हो गया, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, राइट. दिस इज गोइंग टू बी गैस, है ना. क्या लिखा हुआ है? cool to neglecting the vapor pressure of dimer, find the pressure and composition of the gas remaining at 220 Kelvin. तो बस ये O2 ही बचेगी. तो एक बार आंसर करके देख लो इसको. ये हमने शायद एक बार और बताया है ऐसा, ठीक है. यस सर, यस सर. करना क्या है, ये बस ऐसे PV इक्वल्स टू nRT डाल के n निकालो और यहाँ पे भी डालो. थोड़ी कैलकुलेशन होगी. किसी ने किया है क्या? ऐसे ही आ रहा है आंसर? ठीक है, ठीक है. चलो ओके देन, दैट्स इट. यस सर, यस सर. हेलो हाँ सर. मन. सर हाँ आपने वो गैसियस स्टेट वाला क्वेश्चन देखा क्या? यार वो नहीं देख पाया मैं. ओके सर. मैं देखता हूँ. तो एक्चुअली थोड़ा सा अभी बिजी हूँ, थोड़ा सा शिफ्टिंग चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भी था. आई विल टेल यू. ओके सर, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर.